I am going to tell you the way of answer writing. Now, when we talk about answer writing, I will give you three different ideas about this. Ideas in the sense that there are three things that we need to focus on. Number one, there are three things in first case which you have to keep in mind: facts, presentation or expression, and handwriting. And nobody will look at me when I write handwriting, okay, because I know I don't have a good handwriting. Now, what I mean by this: when they ask you any question, be it geography, history, polity, economy, science, whatever it is, or perhaps international relations, how can you write anything which is not true? So fact is the most important thing. You just cannot write anything from anywhere. You have to be authentic while writing any and every answer. So facts most important. Now that you are preparing for this exam, most of you, many of you will be reading the same books, attending the same classes, reading the same newspaper. Everyone is reading Hindu, everyone is going for the editorials from Express, read the same magazines like Kurukshetra, Yojana, everything is same. So facts more or less are same for everyone. Now, how you present your answer will make the difference. How differently you present your answer. Now, when I say how differently you present your answer, I mean like what kind of structure you make. So there are facts and there is idea of structure. So what we call it, we say that there are two ways: flow or throw of facts. We have the facts and we throw it at the examiner, pakado apna answer, right? Or we make an answer which flows like something that is integrated. Examiner padhta, he feels wow yaar, ye tha presentation. So this is again very important. Now third is, you have written the facts and you have presented in a very different way, but the examiner is not able to read it properly. Now why should he have take that much of pain कि भाई मैं तो इसका आंसर आराम से पढ़ूंगा, पता नहीं क्या ही अच्छा लिख दिया, नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं पढ़ा जा रहा, मार्क्स गए. बट नाउ रिवर्स इट. हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर थी, एक्सप्रेशन ऑर्डिनरी था, फैक्ट्स थे ही नहीं, तो वो मार्क्स थोड़ा दे देगा कि कितना ही प्यारा लिखा इस बच्चे ने. पर ये तीनों चीजें इसी सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट है. फैक्ट्स नहीं थे, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा, बहुत सारे फ्लो चार्ट डायग्राम्स बनाए हुए थे, पर वो फैक्चुअल तो ट्रू नहीं थे, तो उसके भी मार्क्स नहीं है. सो फर्स्ट आर द फैक्ट्स, सेकंड इज द प्रेजेंटेशन, थर्ड इज द हैंड राइटिंग. नाउ द सेकंड आइडिया अबाउट आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग हैज अ directive attached to it. Now what I mean by directive: directives are explain, comment, substantiate, elucidate, discuss, analyze, critically analyze. Now had all these directives been the same, सबका अगर एक ही मतलब होता तो फिर इनका फायदा ही कोई नहीं था. Now let's take an example. The examiner said, discuss India-US relations and analyze the scope for further improvement. So क्या difference होगा? The question is, to what an extent the government of India's policies during COVID proved to be a blessing for the people. Analyze the achievements. अच्छा होता क्या है? What happens? This is UPSC. This is not our college university days exam. If the examiner said discuss it and the way we wrote it is more like analysis, he will not give us even a single mark. जिन लोगों का प्री क्लियर हो गया, वन हु क्वालिफाइड द प्री, आई होप वी ऑल अंडरस्टैंड, भाई बहुत पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ के गया होगा, फिर वो मेंस में फेल क्यों हो गया? क्योंकि उसको आंसर लिखना ही नहीं आता, उसको इन डायरेक्टिव्स का मतलब ही नहीं पता. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर विच आई विल गिव यू अ डॉक्यूमेंट टू रीड अबाउट कि इन सब का मतलब क्या होता है. वेयर यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल, सबस्टेंशिएट, प्रूव द पॉइंट, here you have to give the example, right? When we say substantiate, it means yes, you have to give the example कि भाई मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ. Elucidate, throw light on it, इसको prove करो point को, throw light on it. Now one is facts, second are the directives,
Third is your presentation. Now let's take one example, and after that example I will tell you that what all you need to understand. तो एक क्वेश्चन है, यूपीएससी हैज आस्क्ड इट ट्वाइस ऑलरेडी. इस क्वेश्चन को अपने पास लिखो. टू व्हाट एन एक्सटेंट Germany was responsible for World War I. ठीक है. अब तुम ये बताओ, what as a new student comes to your mind, इसका आंसर कैसे लिखा जाए? To what an extent Germany was responsible for World War I. So as a new student, what you think should be the way to write answer? Okay. 3 or 4 lines. Very nice. अच्छा, एक चीज पहले लिख लो अपने पास. A good answer means a very precise introduction. Very precise introduction. Second is main body, and third is conclusion. And when I said introduction, it is the background. Conclusion is future. अब बताओ कैसे आंसर लिखना. How to start this answer? Yash, you said first we have to write the social reasons, second we have to write the economic reasons, third we have to write the political issues, and then the conclusion. No, that's not the way. चलो एक लाइन लिखो आंसर के लिए, इंट्रोडक्टरी लाइन लिखो. कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स. कैटास्ट्रॉफिक वर्ड का मीनिंग समझते ना सब लोग? आज मैं तुम लोगों को बहुत सारे टिप्स देके जाने वाला हूँ तैयारी के. Now it may happen that when you read newspaper, magazines, books, whatever, many a times you will find new words. What are words? They are the part of our vocabulary. The better the vocabulary is, the better the answer is. आज से एक हैबिट बनाएंगे सब लोग, नहीं तो क्लास में पता क्या होता है, many a time students start sending messages, सर इस वर्ड का मीनिंग क्या है? हम टीचर हैं, हम डिक्शनरी थोड़े. जब हम स्टूडेंट थे तब तो डिक्शनरी खोल के ढूंढना पड़ता था. तुम तो पूछते हो तो पता चल जाता है. तो कैटास्ट्रॉफिक वर्ड को गूगल करो फटाफट से. मेक इट अ हैबिट नाउ. From today it is part of your preparation. Whenever you come across a new word, you will Google it. Catastrophic. जब कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, सच लाइक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जिनसे दुनिया बदल जाए, इतनी बर्बादी हो जाए, है ना? डन. सो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स लाइक वर्ल्ड वॉर्स, can never happen because of single factor or due to the responsibility of a single person or a nation. कैसी हो सकता है ना कि एक देश वर्ल्ड वार करा दे. वर्ल्ड वार है भाई, सबको करना पड़ेगा ना. एज वी हैव ऑलवेज बीन लिसनिंग टू अ थिंग लाइक ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, तो जर्मनी अकेला कैसे वर्ल्ड वार करा सकता था? राइट, फुल स्टॉप. एज फार एज जर्मनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंसर्न्ड, it can be understood as. ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन. हम उसको उस पॉइंट पे ले जो उसने सवाल पूछा है. डन. अब अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर दूंगा, कॉजेस नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि वी हैवंट येट रेड द कॉजेस, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेंगे. मैं अगर बताऊंगा अभी तो यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट, बट मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. इट कैन बी अंडरस्टूड एज नंबर 1 डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर 2, इसके नीचे अब 3-4 पॉइंट्स आएंगे जो हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे वी विल बी नोइंग इट. नंबर 2 इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी.
नंबर 3, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लेट्स प्रिज्यूम कि मैंने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे 3 फैक्ट्स लिखे, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे 3 फैक्ट्स लिखे और नो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे भी 3 फैक्ट्स लिखे। तो मैंने टीचर को, एग्जामिनर को आई गेव 9 फैक्ट्स, बट वो फैक्ट्स कितने डिफरेंटली प्रेजेंटेड हैं कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कारण से थी, इनडायरेक्ट इस कारण से थी और नो इन कारणों से थी। क्योंकि आउट ऑफ 9 जो मैंने कॉजेज बताए हैं, 3 के लिए जर्मनी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, फॉर अदर 3 जर्मनी इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। तो जर्मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काफी बन गई, सिर्फ 3 के लिए वो नो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो कंक्लूजन क्या होगा, बेसिस द अफोरसेड डिस्कशन, बेसिस द अफोरसेड डिस्कशन जो हमने ऊपर डिस्कशन कर दी, कॉमा, जर्मनी कैन बी, Germany can be largely held responsible but not completely, but not completely। अब एक बात बताता हूं, फिर लाइन कंप्लीट कराऊंगा कंक्लूजन की। मैंने कहा था ना फ्यूचर पे जाके कंक्लूजन खत्म होता है, राइट। फ्यूचर का मतलब क्या है, हिस्ट्री तो खत्म हो चुकी है, वर्ल्ड वार वाज फ्रॉम 1914 टू 19, फिर वर्ल्ड वार खत्म हुई, तो जो 20 में हुआ वो उसका फ्यूचर ही होगा ना उसका। तो व्हेन वर्ल्ड वार एंडेड, लोगों को लगा भी जर्मनी तो बहुत गलत कर दिया, जर्मनी इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल, तो उस टाइम पे लगा नहीं लगा जर्मनी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने जर्मनी के साथ बहुत ही गलत कर दिया, ट्रीटी साइन कर दी, जर्मनी से पैसा छीन लिया, टेरिटरीज छीन ली, जर्मनी की आर्मी रिड्यूस कर दी, जर्मनी की नेवी डिस्ट्रॉय कर दी, जर्मनी वॉज ह्यूमिलेटेड लाइक एनीथिंग, राइट। सो लाइन क्या लिखेंगे हम, जर्मनी वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल नॉट कंप्लीटली, full stop, however for the time being, Germany was held completely responsible and forced to sign a humiliating treaty of Versailles, Versailles, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। तो तुमने अपने एग्जाम में बता दिया फ्यूचर में क्या हुआ। अब उसने ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बारे में पूछा नहीं है क्वेश्चन में, तो मैंने बताना ही क्यों है। Had it been to what an extent Treaty of Versailles was responsible for World War II, फिर मैं लिखता ट्रीटी ऑफ वर्सेल ने क्या क्या किया। इस क्वेश्चन में तो उसने पूछा ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैंने आंसर खत्म कर दिया। इज इट क्लियर नाउ? कुड यू सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन दिस आंसर? आम आदमी की तरह थोड़ा लिखना हमने आंसर, फैक्ट्स वही रहेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जर्मनी वॉज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज जर्मनी डिड दिस, जर्मनी डिड दिस, जर्मनी डिड दिस, जर्मनी डिड दिस, वो सिर्फ जर्मनी पे लाके सब कुछ खत्म कर जाएंगे। उसने ये नहीं पूछा वाई जर्मनी वॉज रिस्पॉन्सिबल, उसने पूछा टू वट एन एक्सटेंट जर्मनी वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो हम क्या बताएंगे भाई, डायरेक्टली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनडायरेक्टली इसके लिए, और नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए भी है, बट क्योंकि जर्मनी के नाम पे ज्यादा चीजें आ गई तो वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल हो गया। ऑनलाइन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यश, आई होप यू गॉट अ क्लियर मैसेज टुडे, हाउ डिफरेंटली यू हैव टू राइट, ग्रेट। अच्छा, एक ऐसा ही क्वेश्चन और देता हूं, उसके ऊपर अब तुम एक बार सोचोगे, दिमाग लगाओगे कि तुम डिफरेंट प्रेजेंट कैसे करोगे। तुम्हें फैक्ट्स नहीं पता, बट माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाने की आज से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगले 15 दिन तक तुम सिर्फ स्ट्रक्चर्स बनाते रहोगे, फैक्ट्स नहीं लिखा करोगे। पहले हम स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे, फैक्ट्स तो याद करने हैं, स्ट्रक्चर बनाने पे दिमाग लगना है कि क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में एक स्ट्रक्चर आए कि ठा करके स्ट्रक्चर बन गया। तो क्वेश्चन लिखो, डिस्कस द कॉजेज, which led to British success and French failure, to carve out, carve out an Indian empire,
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड टू दिस, टू कार्व आउट एन इंडियन एम्पायर वाला बैकग्राउंड देखते हैं. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, इवन द फ्रेंच केम टू इंडिया. दे बोथ ट्राइड कि हम इंडिया जीत जाएं. ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश जीत गए और फ्रेंच हार गए? So there was a person, Lord Duplex in French as well, who was more clever than Clive. चलो स्ट्रक्चर सोचो. I give you 2 minutes for this structure. अच्छा, what I ask is make a structure, and what some of you did is started writing the facts as if Yash wrote they are more diplomatic and Amanda wrote lack of soldiers. तो मैंने क्या बोला था कि स्ट्रक्चर बनाते हैं. अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता तो कैसे बनाता, इसको देखते हैं. राइट, द ब्रिटिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर टू कार्व आउट एन इंडियन एम्पायर. ये पता है किस टाइम की बात है? ये बात है 1740 से लेकर 1760 के बीच में. इस टाइम में ये सारी एफर्ट्स हुई हैं. डन. सो इसके लिए हम टाइम क्या लिखेंगे? द ब्रिटिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर टू कार्व आउट एन इंडियन एम्पायर ड्यूरिंग द मिड ऑफ 18th सेंचुरी. ये 18th सेंचुरी का मिड हो गया ना, राइट? So the British success and French failure to carve out an Indian empire during the mid of 18th century can be attributed to the following considerations. A क्या होगी? Functions. B functionaries. And C finances. Functions, functionaries, finances. Now when I say functions, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, नॉट द एग्जैक्ट आंसर टुडे बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग. फंक्शंस. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट बॉडी. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटेन की, वो प्राइवेट बॉडी थी. क्योंकि वो प्राइवेट बॉडी थी, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ही नहीं थी. क्विक डिसीजंस होते थे, ऐसा कर रहे हैं चलो कर देते हैं, लेट्स डू इट. वेयर एज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ स्टेट एंटिटी. वो तो राजा ने, मिनिस्टर से बनाई हुई थी. इतना रेड टेपिज्म है. फॉर एवरी डिसीजन दैट यू हैव टू टेक इन इंडिया यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम फ्रांस. पेरिस से परमिशन लो. उस टाइम पे कौन सा इंटरनेट था? कितना डिले होता होगा हर डिसीजन टेकिंग में. फंक्शनरीज. ब्रिटिश हैड एन आर्मी ऑफ एबल कमांडर्स. उनके पास एक नहीं है, कई है. क्लाइव है, पकॉक है, सर इयोकूट है, कितने ही आए हैं. राइट. फ्रेंच ओनली हैड ड्यूप्लेक्स. एक ही है और कोई है ही नहीं इनके पास. एंड इवन ही वॉज कॉल्ड बैक एट अ वेरी क्रूशियल मूवमेंट. उसको फ्रांस ने वापस बुला लिया था. गलत हो गया ना ये भी. थर्ड, फाइनेंसिस में ब्रिटेन मेंटेन्ड बैलेंस between commercial and territorial aims. ब्रिटेन टेरिटरी के लिए भी लड़ रहा है पर अपना ट्रेड भी प्रॉपर कर रहा है. वो ट्रेड से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा. फ्रेंच फेल्ड. वो सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी की लड़ाई में घुस गए एकदम से, पैसा नहीं कमा पाए. नाउ व्हेन यू हैव नो मनी हाउ कैन यू बैकअप योर मिलिट्री? और अगर पैसा बार बार फ्रांस से मांगोगे, फ्रांस तुम्हें बोलेगा वापिस आ जाओ, रहने दो. ब्रिटेन ने इंडिया से पैसा कमाया और इंडिया को जीत दिया. डन. सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया. सो दिस इज व्हाट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि भाई इट्स नॉट अबाउट जस्ट फैक्ट्स. फैक्ट्स तो हर जगह ही मिलते हैं. हियर वी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू मेक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. एंड इट इज नॉट दैट कि आई विल गिव यू स्ट्रक्चर्स, राइट? आई कैन गिव यू 1000 स्ट्रक्चर्स, पेपर में काम ही नहीं आएंगे बिकॉज एवरी क्वेश्चन हैज अ यूनिक डिमांड. तो तुम लोगों को मैं इतना एम्पावर करूंगा, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुम लोग खुद ही एक स्ट्रक्चर बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दो. तुम्हें समझ आ जाए भाई इस क्वेश्चन में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. देन
Last thing, when we write answers, students are always in a kind of dilemma कि भाई पॉइंट्स में आंसर लिखना है कि पैराग्राफ में आंसर लिखना है, राइट? इन दोनों में से किस में आंसर लिखना है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज दिस, व्हाट इज बेटर, पॉइंट्स और पैराग्राफ? दोनों में लिखना होता है आंसर। देखो, जो तो इंट्रोडक्शन है, एंड वी विल नेवर राइट वर्ड इंट्रोडक्शन ना, पता ही है पहला पैरा इंट्रोडक्शन है, लिखना होता है इंट्रोडक्शन, अंडरलाइन करना, उसको ऐसा नहीं करना। जो इंट्रोडक्शन है वो तो पैराग्राफ में ही होगी, वो थोड़ा पॉइंट में हो सकती है। आफ्टर इंट्रोडक्शन एक कनेक्टिंग लाइन भी आएगी, कनेक्टिंग लाइन वो भी काइंड ऑफ पैराग्राफ ही होगी कि भाई इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं आगे जो पॉइंट्स देने जा रहा हूँ। फिर जहाँ से वो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जिसको मेन बॉडी बोलते हैं, उसमें हम पॉइंट्स में दे सकते हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट्स ये थे, सोशल पॉइंट्स ये थे, इकोनॉमिक पॉइंट्स ये थे, या जैसा अभी हमने लिखा था फंक्शंस ये थे, फंक्शनरीज ये थे, फाइनेंसिस ये थे, वो पॉइंट हो सकते हैं। डन। फिर आता है कंक्लूजन, वो भी पैराग्राफ में होगा। सो स्टार्टिंग एंडिंग विद पैराग्राफ, कनेक्टिंग लाइंस विद पैराग्राफ, अदर थिंग्स इन पॉइंट्स। प्लस जहां पे पॉसिबल हो वहां पे मैप बना दो, जहां पे पॉसिबल हो वहां पे फ्लो चार्ट बना दो, कोई डायग्राम बना दो, राइट? वट एवर इज पॉसिबल वो बनाना है, बट मेक श्योर कि जब भी तुम ये चीज बना रहे हो, ये क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंगली बना रहे हो, धक्के से नहीं बनाना। इट मस्ट नॉट बी एज इफ यू हैव जस्ट फोर्स समथिंग अननेसेसरली। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आए डिस्कस गांधी जी कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें मैप कैसे बना सकते हो? डिस्कस द स्प्रेड ऑफ और ट्रेस द स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया एंड हाउ इट चेंज्ड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ तो मैप बन सकता है ना, एक फ्री हैंड इंडिया का मैप बनाया, राइट? प्रैक्टिस करोगे फ्री हैंड, बहुत अच्छा मैप बनाओगे। उन्होंने बोला ट्रेस द स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, इट वेंट देयर, देयर, हेयर, हेयर एंड हेयर, एट दीज प्लेसेस दीज वर द लीडर्स, उनके नाम लिख दिए यहीं पे, हो गया ट्रेस। अब बताओ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, right? So you can make maps, you can make flow charts, you can make diagrams, but make sure that they are in line with the demand of the question. They must not seem like कि कुछ alien सा कर दिया भाई, धक्के से बना दिया, then examiner will be irritated, instead of giving marks he will deduct the marks.